English, that is degrees of comparison. Now what is degree? What do you mean by degrees of comparison? See the words degrees of comparison. That means there is some comparison. A comparison of what? Comparison of adjectives. And what do you mean by adjective? You know that. Adjective is the quality of any person or anything. That you have, you know this term. The adjective. So, when the adjective changes its form, when adjective changes its form, it is called degrees of comparison. Okay? You don't have to recite this definition. You have to just understand what do you mean by degrees of comparison. Okay? So when the adjective you have seen in any sentence, it's changing its form, then it will be called as degrees of comparison. So there are three types of degrees of comparison. First is positive degree. You know this term too, that few students of mine have already studied this thing. So it is just what do you say? It is just a revision of this topic, and those who are new, please pay attention as it has 1 mark, and that 1 mark counts. And this degrees of comparison we may have seen in the papers, question papers, but we use this in day-to-day language. How? We will see in the examples. What happens in positive degree? Again, it is related to some adjective, right? So in positive degree, some quality of things will be given in simple form. Simple form of adjective. For example, tall. It is the simple form of adjective. Right. Next is comparative degree. What do you mean by comparative degree? Again, it is related to adjective. So, comparison between two things, persons or animals. Only two things or two persons or two animals will be given. What? The comparison, the adjective, comparison of adjective will be given. Only two. What happens in superlative degree? In superlative degree, there will be comparison between one and few things or persons or animals. So obviously there will be more than two things or two persons or two animals. Correct? Is it okay? When we study degrees of comparison, we need to first understand how to identify the degree. How to identify these three of degrees. Okay? That is very important. Then and then you can change its form. Like from positive degree to comparative or comparative to superlative or vice versa. Is it okay? So we will see in some table number 1 how to identify the degree. That's it.
So that table itself will tell you every time that how to identify, and then you can easily change its form. Let's see how the table is. In column number 1 there is positive degree. Next column comparative degree. And then it comes superlative degree. Okay. This is very important because this gives you the basic idea how the degrees are identified. So, number 1 is, there are some keywords that will help you to identify these degrees. Those keywords I am listing out. Not, as, so as. Second, no other, or and as. Third, very few, and as. See what I have written in positive degree? I have written some keywords. Not, as, dash, as, or so, dash, as. When you will see these words in any of the sentence, while identifying or while transferring or changing the degrees of comparison, when you see these keywords, you will quickly understand that it comes under positive degree. In 2, number 2, see there are again 2, no other. No other, this type of word will come. Again as and dash as will come. So in between as to as there will be adjective, as tall as beautiful as, like this. Again in number 3rd, one very interesting term is coming, that is very few. So very few is also the type of positive degree. You will understand how it is. Okay, very few and again as, dash as. So these 3 terms comes under positive degree. Let's see in comparative degree what are the terms, what are the keywords. ER. What is ER? Taller. ER आया, ER आ सकता है, उसके बाद taller और आएगा वर्ड than. क्यों? क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 चीजों के बीच में, 2 लोगों के बीच में या 2 एनिमल्स के बीच में. सो than आएगा कंपैरिजन के लिए. या फिर आ सकता है more. अब more में भी ER आता है, ठीक है. वो कब आता है, कैसे आता है, I'll tell you in another lecture. It is called as 1 syllable, 2 syllable or more than 2 syllable comparison. Now for this time just understand how to identify the degrees. More आएगा and again than आएगा for the comparison. Next number 2nd पे आएगा बेटा than any other. If you see this word than any other, it will surely comes under comparative degree. Okay, and you don't have to recite any of it. You will understand when we take examples. Again, than most other. ये भी कीवर्ड आ सकता है. So that is also comes under comparative degree. What comes under superlative? The is the identity of superlative degrees. How? The best, the tallest. So when you are using EST term or using superlative degree, you have to add the as a or the as a article before it. So the के साथ में EST लगेगा, best, या फिर
मोस्ट आ सकता है। जहां EST नहीं लगेगा, लॉन्गर वर्ड है जैसे इंपॉर्टेंट, सो मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें मोस्ट लगेगा व्हेन वी आर गोइंग फॉर सुपरलेटिव डिग्री। या फिर अगेन द आ सकता है, इसमें भी EST आएगा और मोस्ट, और एक छोटा सा है वन ऑफ। Whenever you are attempting any question of degrees of comparison, अब जब भी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर रहे हो, इस टेबल को जरूर पढ़कर जाना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस विल help you to identify the degree first and then you can convert very easily. Is it okay? But you must be those who are new, those who don't know what are, why I have written 1 2 3, मैंने 1 2 3 में क्यों लिखे, क्यों 1 में नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है? तो जिन्होंने पढ़ चुके हैं मेरे पास, उन्हें पता है कि ऐसा क्यों है। जो लोग नए हैं मैं उन्हें बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। हमने क्यों 3 टाइप में उसको डिवाइड किया है हर डिग्री में। पॉजिटिव में 3 टर्म्स है, कंपैरेटिव में भी 3 है और सुपरलेटिव डिग्री में भी 3 है। लेट्स सी क्यों। हमने एक सेकंड पहले टेबल बनाया था टू आइडेंटिफाई द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। सो उसमें 3 नंबर दिए थे मैंने, 1 2 3। सो 1 2 3 वो टाइप वाइज दिए थे कि टाइप 1 में क्या आएगा, टाइप 2 में क्या आएगा, टाइप 3 में क्या आएगा। सो टाइप 1 है बेटा, टाइप 1 में हम करेंगे कंपैरेटिव डिग्री से चेंज ओवर पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में हमें पता है क्या होता है, देयर विल बी कंपैरिजन ऑफ 2 थिंग्स, 2 पर्सन्स और 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 एनिमल्स। इसको हमेशा ध्यान में रखना। कंपैरिजन ऑफ ओनली 2 थिंग्स, एनिमल, whatever it is given in example, that is different, but there will be comparison of only 2 things. So I am leaving some space, okay, why I'll tell you later on. I will jump to example. Okay, example number 1 है oil is lighter than water. ठीक है, इज इट ओके? देखो क्या है हमारे पास, क्या है, ऑयल है। ऑयल क्या है, हम इसको चीज बोलेंगे, थिंग बोलेंगे। ठीक है, तो 1 थिंग और एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। ये है सब्जेक्ट 1 ऑयल। ठीक है, क्या है, इज लाइटर। लाइटर क्या है, लाइटर इज एन एडजेक्टिव, या फिर हम इसे कहेंगे डिग्री, जो कंपेयर हो रही है इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बीच में। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है ऑयल और देन आता है, ठीक है, कंपैरिजन के लिए हमने अभी जस्ट टेबल में देखा था कि देन रहेगा, मतलब वो कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। सो वाटर है हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। तो मैंने क्या कहा, देयर विल बी ओनली कंपैरिजन बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, 2 थिंग्स, 2 पीपल। सो हियर इज अ कंपैरिजन। तो ये कौन सी डिग्री हुई, ये डिग्री हुई कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें एडजेक्टिव है लाइटर। देखो ER भी लगा हुआ है। इजी है आइडेंटिफाई करना, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, सो हम क्या देख रहे हैं, टाइप 1 में कंपैरेटिव से जाना है पॉजिटिव डिग्री। अब हम चेंज ओवर देख रहे हैं बेटा। ठीक है,
चेंज ओवर देख रहे मतलब चेंज करने वाले, पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और वॉइसेस। तो जब हम चेंज करने वाले हैं तो हमेशा एक बार ध्यान में रखना। क्या ध्यान में रखोगे कि जब भी आप डिग्री चेंज करोगे, कोई भी डिग्री, किसी कंपैरेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से कंपैरेटिव, व्हाटएवर, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मीनिंग चेंज किया तो क्या होगा? ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग चेंज होगा तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, कभी भी कन्वर्ट कर रहे हो किसी और डिग्री में, तो उस कन्वर्जन के वक्त उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए तो हमें कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़ सकते हैं, सो दैट मीनिंग तो सेम ही रहे, सिर्फ डिग्री चेंज हो जाए। तो हम क्या देख रहे हैं? कंपैरेटिव से पॉजिटिव जाने वाले। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? टेबल नंबर 1 में लिखा था हमने, क्या था? एज आना चाहिए, ठीक है, डैश 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 के बाद अगेन एज आना चाहिए, या फिर सो डैश 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 एज। अब ये डैश में क्या आएगा? डैश में आएगा जो डिग्री एडजेक्टिव आप चेंज करने वाले हो, जिसका फॉर्म चेंज होने वाला। तो लाइटर से होना चाहिए लाइट। अब लाइटर से लाइट तो हो जाएगा, लेकिन हम मीनिंग तो चेंज नहीं कर सकते ना। अब मीनिंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ और वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है? वो क्या है? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जा रहे हो, कोई भी टाइप का, हम टाइप 1 पढ़ रहे हैं इसीलिए कह रही हूं, ऐसा नहीं है, किसी भी टाइप में पढ़िए आप। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जाएंगे, हमेशा सब्जेक्ट्स का इंटरचेंज होना जरूरी है। देन एंड देन हम उसका मीनिंग जो है वो सेम रख सकते हैं, सिर्फ डिग्री चेंज हो जाएगी। कैसे? ये क्या बताता है? ऑयल इज लाइटर देन वाटर, मतलब तेल पानी से हल्का है। ये सब मानते हैं? आपको इस बात को मानते हैं, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तेल पानी से हल्का है। अब इसका मीनिंग चेंज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन डिग्री चेंज होनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि हम सब्जेक्ट्स को करेंगे इंटरचेंज। जिस जगह सब्जेक्ट 1 है उस जगह आना चाहिए सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 2 है हमारे पास वाटर। ओके, वाटर है। अब ये जो भी टेंस में है, ठीक है, इज है तो इज, वॉज है तो वॉज। अब वाटर क्या है? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। एक वाटर को सिंगुलर समझते हैं तो वाटर के आगे इज जाएगा। अगर ये वाटर्स तो होता नहीं है, ठीक है, और कोई होता, बर्ड्स होता फॉर एग्जाम्पल, तो बर्ड्स होता तो उसकी जगह आर आता। ये कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आई विल टेक फ्यू लेक्चर्स ऑन दिस। सो वाटर इज, अब मैं ऐसा लिखूं तो वाटर इज लाइटर देन ऑयल, मीनिंग चेंज हो गया। अभी तो क्वेश्चन में था कि तेल पानी से हल्का है, और अभी आंसर में आपने क्या लिख दिया कि पानी तेल से हल्का है। ऐसा नहीं चलेगा। सो वाटर इज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन डिग्री तो रहनी चाहिए, इसलिए हम नॉट यूज करते थे कि कॉलम नंबर 1 में नॉट था। ओके, वाटर इज नॉट एज, डिग्री हमने सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 1 की जगह ला दिया। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लगा लिया, ठीक है, टू बी। इज लगता है, वॉज लगता है, क्या लगता है, वो क्वेश्चन को देखकर हम लगाएंगे। नॉट इसलिए लगाया सो दैट ये जो भी सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। सो वाटर इज नॉट एज, एज के बाद डैश था बेटा, राइट? तो डैश के बीच में हम क्या करने वाले थे? हम एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज करने वाले थे। यहाँ पर लाइटर था, ईआर था, क्योंकि वो कंपैरिजन में था इसीलिए ईआर था। इसको हटा देंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे लाइट। एज, वाटर इज नॉट एज लाइट एज। अब पढ़ते हैं इसको फिर से। वाटर इज नॉट, पानी तेल जितना
हल्का नहीं है। देखो मीनिंग चेंज हुआ क्या? नहीं। तेल पानी से हल्का है, ठीक है, लेकिन पानी तेल जितना हल्का नहीं है। दोनों का मीनिंग तो सेम है, सिर्फ क्या चेंज की हमने? डिग्री चेंज की। और जब डिग्री चेंज की तो हमने क्या क्या चेंजेस किए? हमने एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी लगा लिया, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए इसलिए नॉट लगा दिया, एज लगा दिया और बीच में चेंज कर दी डिग्री। आसान है, बहुत आसान है। अब इसको हम फॉर्मूले में कैसे सेट करेंगे? कंपैरेटिव से सुपर पॉजिटिव डिग्री में जाने का फॉर्मूला कैसा है? मैं चाहे तो फॉर्मूला पहले बता सकती थी, ऐसा मैंने नहीं किया। उसका रीजन ऐसा है कि आपको पहले समझना चाहिए कि ये क्या है, सो दैट आप खुद होकर फॉर्मूला बना सके। ठीक है, फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करो, ठीक है, तो फॉर्मूला सब्जेक्ट नंबर 2 आना चाहिए पहले, प्लस नेक्स्ट हमने क्या किया? इज लगा लिया, तो फॉर्म ऑफ टू बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं? I'll tell you later on क्या होते हैं टू बी के फॉर्म और उसको क्या कहते हैं। ठीक है, सो सब्जेक्ट नंबर 2 जो भी है सेंटेंस में वो ले लिया, फॉर्म ऑफ टू बी लगा लिया, उसके बाद क्या है? नॉट। क्यों? क्योंकि हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। उसके बाद आना चाहिए एज और प्लस चेंज द डिग्री। अब वक्त आ गया डिग्री चेंज करने का। लाइटर से किया हमने लाइट और लगा दिया फिर से एज और बचा हुआ सब्जेक्ट नंबर 1। इज इट ओके? अब हमेशा ध्यान में रखना, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, इसको रिसाइट करना नहीं है। ध्यान हमेशा रखना है जब भी कंपैरिजन सिर्फ दो लोगों के बीच में, दो चीजों के बीच में हो, तो अगर हम कंपैरेटिव डिग्री होगी उसे हम पॉजिटिव में करेंगे। जिस भी टाइप का सेंटेंस हो तो हमेशा सब्जेक्ट को इंटरचेंज करना जरूरी है, एक दूसरे की जगह लाना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? आयरन इज मोर यूजफुल देन कॉपर। ठीक है, देखो फिर से कंपैरिजन हो रहा है। हमने कैसे पहचाना कि कंपैरिजन है? ये तो गिवन है इसलिए हम पहचान। अगर गिवन नहीं होता तो कैसे पहचानेंगे? हमारे पास टेबल है, हमने टेबल में क्या देखा? मोर आया तो कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, देन आया तो कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब ये सिंपल कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। लेकिन ये किस टाइप का है? टाइप भी पहचानना इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 में मैंने क्या कहा? टाइप 1 में हमेशा कंपैरिजन सिर्फ दो चीजों के बीच में, दो लोगों के बीच में होगा। सो लेट्स सॉल्व इट। हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 तो ये है और सब्जेक्ट नंबर 2 कौन सा है? कॉपर। चलो इंटरचेंज करते हैं। कॉपर इज लगना चाहिए, अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ टू बी, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन इटसेल्फ बता देगा। इज। अब क्या करना है? फॉर्म ऑफ टू बी लगा दिया, नॉट लगाना पड़ेगा। क्यों नॉट लगाना है? क्योंकि हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है। मीनिंग भी चेंज नहीं करना है लेकिन डिग्री जरूर चेंज करनी है। सो कॉपर इज नॉट। एज लगता है बेटा, देखो एज। अभी करना है डिग्री को चेंज, तो ये एडजेक्टिव हमारा क्या है? यूजफुल। करें, उसके पीछे मोर लगा है, मोर यूजफुल बिकॉज ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम डिग्री चेंज कर रहे हैं तो मोर हटा देंगे, हटाना पड़ेगा ना क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। तो हम जा रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में, इसलिए मोर को हटा देंगे, लिखेंगे सिंपल यूजफुल एज आयरन। और जब भी आप चेंजेस कर रहे हो किसी
किसी भी सेंटेंस में हमेशा उसको हाईलाइट करना, इज नॉट एज यूजफुल एज आई। किसी का मीनिंग चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिग्री चेंज हुई। इज इट ओके? लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल कहता है ब्लड इज थिकर देन वाटर। Again, there is a comparison of two things. So it comes under type 1. So let's interchange the subjects. Subject number 1 है blood, subject number 2 है किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? than water. तो water के साथ में water is not as, देखो thicker, ER लगा है, ER को हटा देना है और उसके हटाकर जो बचेगा क्या बच रहा है? थिक एज ब्लड। इज इट ओके? वेरी इजी। टाइप 1 को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इजी है और उसको कन्वर्ट करना भी बहुत इजी है। ठीक है, देखिए और कोई एग्जाम्पल है? ओके, 3 examples are sufficient for this lecture. I have few more examples which I have categorized. उसको डिवाइड किया है मैंने डिफिकल्टीज लेवल में, कि जो पहली डिफिकल्टी या लेवल 1 होगा उसमें कुछ 10 क्वेश्चंस है, ठीक है, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। फिर लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, विल गो फॉर सम अदर हायर एग्जाम्पल्स, थोड़े डिफिकल्ट एग्जाम्पल जिसमें थोड़ा स्ट्रेस देना पड़े दिमाग को समझने में, आइडेंटिफाई करने में, कन्वर्ट करना थोड़ी दूर की ही बात। सबसे पहले काम क्या है हमारा? आइडेंटिफाई करना। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी टाइप 2 में क्या होता है और टाइप 3 में क्या होता है। इज इट ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरे पास पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बहुत आसान है, वो उन्हें ये पता है, इट्स जस्ट अ रिविजन। लेकिन जो लोग नए हैं, अभी देखना शुरू किया है, अभी पढ़ रहे हैं, नए बच्चे हैं, वो ध्यान से सुनिए हर चीज को। हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? अगेन फॉर्मूला को लिख लो, बट इसे याद करना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।